Our first chapter is about chemical reactions and equation. As I was telling, I was discussing with Angad right now that this is the time, this is our first study. First study will go a little bit elaborate, more from the perspective, so that you guys have all the freedom to ask any question that you want to ask, so that if you are planning to have chemistry as your subject in grade 11, so this is the time, because whatever you are studying right now, you will cry that these are some tough topics and all, but these are all toy level. 11 is real tough. तो हम लोग कुछ चीजें elaborate भी पढ़ेंगे अभी, but when we do stage 2 revisions, at that time we won't be elaborate, we'll be sticking right down to the topic. ठीक है? तो we start with chemical equation, but I felt that there are some of you might know who were with us in 9th, some of you who were not with us in 9th might also know, but let us have some clarity, okay? The clarity of some topics. How, and raise your hands and be very, very free to say, I don't know. Atom versus molecule. एकदम क्लियर है. अगर नहीं है तो किसी को भी थोड़ा सा भी क्लाउड है तो बोलो, कोई बात नहीं, बट इसको नहीं जान के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. Atom versus, because I'll otherwise ask questions and I'll make sure whether you know or not. An atom versus a molecule. Is this clear or not? An element versus a compound. Is this clear? बताओ वेदांत, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? Element is made up of one kind of matter, whereas compound is made up of different things. A machine is a combination of various layers that pulley across layer. कहना क्या चाहते हो? अच्छा रट लिया है. एक बात करते हैं ना, कोई बात नहीं ना. ये हो आप नाक से क्या सूंघ रहे हो? हवा नहीं, एयर नहीं, ऑक्सीजन सूंघ रहे हैं. अच्छा, कोई मुंह पहले नहीं खोलेगा. क्या सूंघ रहे हैं? ऑक्सीजन के कौन से रूप में सूंघ रहे हैं? O है, O2 है, O3 है. आप क्या सूंघ रहे हैं? O2 और O में क्या फर्क है? सर, I mean डोसा नहीं बनाओ इंशाल्लाह. O2 और O में क्या फर्क है? इसीलिए मैं, this is not to corner him, okay? These are all for our doubts to get cleared, okay? So see, this thing called element, he rightly said it is made up of one kind of particle. One kind of particle मतलब एक element atom से भी बना हो सकता है, and an element can be made out of a molecule also. Those elements which can stay stable in atomic form will stay in atomic form. Colony के अच्छे बच्चे, inert gases. We have got helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Periodic table हाथ में रखिए. Though it is not necessary, your NCERT does not give you, or CBSE does not make you study periodic table. If you don't know periodic table, आप गए काम से, आप सीख ही नहीं पाएंगे chemistry. You'll always memorize. Keep a periodic table PDF printout, A4 size always with you. The more you play and love this chart, the more your life is going to get easy. As I told you, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. They can exist in atomic form. Inert gas. एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में भी पाया जा सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी पाया जाता है. ऑक्सीजन एज एन एटम इज नॉट स्टेबल, सो वन ऑक्सीजन कंबाइंस विद अनदर एंड फॉर्म्स व्हाट? अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ये जो है ना, ये एटम है, और ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है. ये भी मॉलिक्यूल है, इसको हम ओजोन बोलते हैं. दिस इज नोन एज ओजोन. ठीक है, आप इसको सूंघते हो. ठीक है, अच्छी बात है. ये क्या है फिर? हाँ, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? फॉर्म क्या है? ये क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है. दो अलग है ना, हो सकता है. इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एटम और मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. तो यहां से एक चीज सीखते हैं. एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड, आगे तुम फिर से कहा ग्रेड 9 में, दोनों को ही क्या माना जाता है? प्योर सब्सटेंस. A pure substance is a substance which is made up of only one kind of particle. Elements जो होते हैं one kind of particle. ये particle atom भी हो सकता है, ये particle molecule भी हो सकता है. But what is a compound? What is the definition of a compound? A compound is a pure substance which is made up of
two or more elements, huh? In a fixed ratio. Chemically combined. That is the word. Perfect word. Chemically combined. Join नहीं, फेविकोल थोड़ी है डाल के दोनों कंबाइन कर देंगे. कंपाउंड में क्या होता है? अ कंपाउंड में we will have an element E1, say an element E2, or maybe more also. The word is chemically combined. क्या बोलते हैं इसको हम? Chemically combined. और ये chemically combined इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है. This is nothing but what in grade 6 and 7 you studied something as chemical change. है ना? Chemical change. What is a chemical change? A chemical change always gives you a new substance with new properties. है ना? ये देखो. Basics clear करो. ये कौन है? ये कौन है? और ये क्या बन गया? 2H2O. Highly explosive. Supporter of oxygen is explosive? Flammable? No. Oxygen is only supporter of combustion. Oxygen खुद से आग नहीं लगता है. Get that out of your head. Oxygen is a non-flammable gas. This is an explosive. This supports combustion. उनका बेटा देखो fire extinguisher. New substance, new properties. वो अपने parent के properties को भूल जाता है. That is called chemical combination. जैसे you take some pieces of iron, you combine it with sulfur. Just combine. And then put magnet, सारा आयरन आ जाएगा because you have just combined it. ये जैसे बोल रहा था ना join, ऐसे join कर दिया, ऐसे ऐसे करके. So parental properties retained, magnetic product. इसी को आप हीट कर दो. जैसे आप इसको हीट करोगे ब्लैक कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा फेरस सल्फाइड. अब मैग्नेट लाओ, कोई एक्शन नहीं. Have you understood? So our chapter in chemical reaction मतलब क्या है उसको जानने से पहले सबसे पहले चेंज को जानते हैं. Changes are of two types, physical and chemical. अब physical change में form change हो सकता है. Water can be in the form of solid as ice. Water can be in the form of liquid. And water मतलब क्या? Dihydrogen oxide. And can also be in gaseous form in water vapor. तीनों में ही वो H2O ही है. H2OS, H2OL, H2OG. LSG means liquid solid gas. The change that is called a physical change. A physical change can be brought about by usually, आप reverse process कर सकते हैं, cooling से heating, heating से cooling. Whereas a chemical change means the substance completely undergoes a change, and a chemical change will always be backed up with exchange of energy, and energy in the form of light, heat, sound जैसा हो सकता है, and new substances with new properties will be formed. During this process, that is known as reaction, the chemical reaction. What is a chemical reaction? A chemical reaction is all about reactants combining, chemically combining to form products under certain conditions of pressure, temperature, presence of catalyst. All these we will study. ठीक है ना? एक रिएक्शन को होने के लिए कुछ रिएक्टेंट्स चाहिए, रिएक्टर्स. ये ऐसे ही अब आप सोचो, हम लोग ऐसे ही एक इक्वेशन लिख देते हैं C+O2, इसको हम क्या लिखते हैं? CO2. वीकेंड आ रहा है, आई वांट टू मेक बारबेक्यू एट माय होम. कोयला लाके रख दिया कहां पे? बालकनी पे. ऑक्सीजन तो भरमार में है, इसका मतलब कि हम घर में कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ रहे हैं? नो, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. इसके लिए आपको कोयले को जलाना पड़ेगा. सो ये इतना सिंपल नहीं है जैसे हम सोचते हैं. आप ऑक्सीजन के सिलेंडर खोल दो और हाइड्रोजन खोल दो, पर करके भीष्म पितामह पानी जा रहा है उसके मुंह में, ऐसे थोड़ी होता है. So a chemical reaction always takes place when there is a reactants. These reactants will chemically combine under certain conditions of pressure, temperature, and presence of catalyst may also be required to expedite the reaction. And we will study. आगे पढ़ेंगे. And then we get new products. And these new products will be completely something new. They will not inherit any of the parental property. समझ में आ रहा है? That process को जो हम बोलते हैं, that's a chemical reaction. उस reaction को हम our chapter is all about studying that reaction, types of those reaction, then what are the parameters associated with the reaction. Chemical reaction हो भी नहीं रहा है कि हमें कैसे पता? आपको कैसे पता कि chemical reaction हो रहा है? Let's say I take a nail and I wet it and I keep it outside. After some days I see rust being formed. The chemical reaction is taking place. How did you get to know? The formation of rust, a change in color. That also tells you a chemical reaction is taking.
your bathroom tiles are not that clean and they've got stains and you have put some acid on it and you see bzzz करके effervescence होना शुरू हो रहा है, तो आपको उससे भी पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इसके बाद न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज तो फॉर्म होने वाला. But before going ahead with that chapter, I always wondered that are we what you call clear about these concepts? This entire thing will give you a PDF, don't worry. A concept of atom and molecule. आइए फिर से देखते हैं. So when you have an element, and if you have any doubt, you ask. Element can be represented by an atom. Element can also be represented by molecule. ठीक है. Whereas जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, we are talking about compound. Nobody will make this clear to you. Even in grade 11 people fumble, people study higher and ये basic clear नहीं है. When it's a compound's first entity will itself be a molecule. Have you understood? Now थोड़ा सा ड्राइंग से देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन के एटम को मैंने ऐसे दिखाया है, एक रेड सर्कल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसे दिखा रहा हूं? ऐसे दिखा रहा हूं. एंड देन आई एम नाउ पुटिंग अ व्हाइट अराउंड इट. दिस शोज दैट दिस इज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. हैव यू सीन पेपर वेट्स, सिलिका पेपर वेट्स जो डॉक्टर्स टेबल में रहते हैं ना, उसमें हम सिर्फ ग्लास पोर्शन पकड़ सकते हैं, पर अंदर कलर चीजें होते हैं, हम छू नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते. यू कैन टेक देम आउट. This is a molecule, right? Now let's say I have another atom and my another atom is hydrogen. ये हाइड्रोजन का एटम है, right? Hydrogen and oxygen combine together to form what? Water. What is the combination? H2O. तो water कुछ कैसा दिखेगा? ये हाइड्रोजन का एटम है. Water ऐसा रहेगा, H, एक और H, और क्या है इसके साथ? एक O है. तो ये मान लीजिए O है. O एटम कुछ ऐसे दिखाते हैं हम. अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है. ये है वाटर. This is water. Have you understood? So if somebody says, which was the select, I think this was, if I'm not wrong, मैं भूल जाता हूँ यूज करते करते. Okay, so let's say this is water. If you have another water molecule, the other water molecule will also be like this. ये दूसरा water molecule. ये the white circle is trying to show, I'll write it for you. This white circle is the molecule. मतलब अगर आप वाटर का सबसे छोटा वाला पार्ट छूना चाहते हैं, get me a molecule of water. Say suppose if this was possible, ट्रे में क्या लाएंगे? ये white circles लाएंगे, जिनके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा? 2 ग्रीन सर्कल और एक रेड सर्कल. क्या वो ग्रीन सर्कल अंदर छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिर्फ देख सकते हैं. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. हैव यू अंडरस्टूड? अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन के एटम्स ले आइए, आप कैसे लाएंगे? आप एक ट्रे लाएंगे और वहां रेड ये ऑक्सीजन एटम्स है. अगर मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन एटम्स लाइए, ये है. अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लाइए, गेट मी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, व्हाट विल यू ब्रिंग? दीज वंस. बट the last entity that you are able to characterize is this white circle. इसके अंदर और नहीं. Have you understood? This is so one tagline comes it, all molecules need not be compounds, but every compound is always represented by a molecule. Molecule can represent an element also, molecule can represent a compound also. और दूसरी बात आती है कि ये रिएक्शंस होते क्यों हैं? तो इसके लिए भी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बिना नहीं होता है. In our chemistry, of all the elements in the periodic table, the good boys are only on the right side. आपके घर में भी आपके मम्मी पापा कहते हैं उसके जैसा बनो, be like the good boys. So there's a rat race of everyone to be the good boy, means to be to have the electronic configuration of those inert gases. That is the definition of stability. So everyone combines to attain stability. And once you are stable, your energy will be down. I hope you know. Energy is down when you are stable. बच्चा बहुत ज्यादा एनर्जी है तो पूरे घर में हरकम करके रखता है. रात को एनर्जी डाउन हो गया, बच्चा सो गया. If I put you on top of your school bus and I ask you खड़े होके जाओ, your energy is very high. Potential energy, mass into gravity into height. आप कंफर्टेबल नहीं हो. Where are you comfortable? बस के अंदर आके अगर फ्लोर में बैठ गया ना, आपको कोई डर नहीं है. Low is your energy state, the more stable you are. So is atom and molecule concept getting clear? Very good. Next,
some basics which you should know in chemistry. I've got them as charts also, I've put them up. Let's talk about some acids. Okay, if you don't know the periodic table, आपको compound के formulas में issues आना शुरू हो जाएगा. See what has happened. If you compare yourself with an ICSE child, he or she from grade 7 have learnt it in a very nice manner. CBSE has absolutely made a ruckus of chemistry, and in this chapter suddenly you'll see barium chloride BaCl2 reacts with H2SO4. आपको तो पता ही नहीं H2SO4 कौन है, चाचा है, भतीजा है, कुछ नहीं. वो बच्चा जानता है क्योंकि वो बेसिक्स पढ़ के आया है. So I have picked up some shots from ICSE chemistry grade 9 book and I put them up here. I put them up on our Skype classroom also. Try to go through that because then only your life will be simpler. In आप ये मत सोचिए ये नहीं जानने से आपको 10th में मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, पर आने वाले दिन में आपको तकलीफ ज्यादा होगी. आइए कुछ एसिड्स की बात करते हैं which you should know and please keep writing them. H2SO4 known as sulfuric acid, इसके साथ आप रोज खेलोगे. HNO3 known as nitric acid, HCl hydrochloric acid, CH3COOH acetic acid, then H2CO3 carbonic acid, H3PO4 phosphoric acid. इतना तो लिख लीजिए. And write the name also. Don't just write H2SO4. घर में जाके H2SO4 क्या है सर नहीं पता. H2SO4 stands for sulfuric, HNO3 stands for nitric, HCl stands for hydrochloric. कौन सा चाहिए बेटा बोलो. CH3 acetate है ना. एसिटिक एसिड बताऊंगा आगे चलिए. H2CO3 is carbonic acid. This is what is in vinegar, this is what is in Pepsi or Coke, Cola. And H3PO4 is phosphoric acid. Your idea here should be you will get lot of radicals. Radicals मतलब ये देखिए, इसको अगर हम तोड़ के देखें तो ये कैसा टूटता है. 2H plus and SO4 2 minus. Since these are from acid, this part is what? This is your cation. इसको हम क्या बोलते हैं? anion. और which one? H2CO3 carbonic acid. Anion. And since this anion is coming from an acid, इसको हम acid radical भी बोलते हैं. It is known as an acid radical. Acetic acid, the one acid which is present in vinegar. Now hang on student, why I have written this for you? You will deal a lot with sulfates. So your idea should be that how if I forget also कि सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना रहता है, हमेशा उसका एसिड याद करो. सल्फेट का एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. Did you understand this? Hydrogen here, hydrogen's oxidation state will always be +1. दो हाइड्रोजन है तो कितने प्लस हो गए? एक और H प्लस, कितने हो गए? 2 pluses. और ये न्यूट्रल है. The idea is like this. See, say suppose you don't know what is sulfate. तो हाइड्रोजन से हमें क्या मिला? 2 into +1. सल्फेट का हमें नहीं पता, X. Overall compound will never have charge on it. It should be 0. तो सल्फेट कितना निकला? -2. ऐसे आप याद करोगे, नहीं तो आप एग्जाम में भूलोगे आगे चल के कि सल्फेट -2 होता है कि क्या होता है. ठीक है. अच्छा, HNO3 is नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे H प्लस होगा और यहाँ पे क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड. So what is baking? Last one is phosphoric acid. So what is baking? बेकिंग सोडा, NaHCO3. ठीक है. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस विल ब्रेक एज H प्लस एंड Cl माइनस. अब एक एक करके सीखेंगे. एसिटिक एसिड, नाउ दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. आगे चल के सीखेंगे. डोंट बर्न योर हेड, सुनते जाओ ताकि ये वर्ड्स आगे आए तो आपको नया नहीं लगे. ये ऑर्गेनिक एसिड है, बाकी सब इनऑर्गेनिक एसिड है. अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है आज नहीं, कभी और. ऑर्गेनिक एसिड्स में हम पहले एसिड रेडिकल को लिखते हैं H प्लस. सबका नाम भी है, देखेंगे क्या है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस. तो आइए इनके नाम देखते हैं, ये आपके लिए बहुत कॉमन आएंगे. SO4 is known as sulfate.
सल्फेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 8, SO3 होने से होगा सल्फाइट, आइट, TE, और S अकेला होगा तो DE, आइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है। नाइट्राइड, कोई भी अगर आप सुनोगे अमोनियम नाइट्राइड मतलब अकेला नाइट्रोजन है। नाइट्राइट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाइट्रेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये सब धीरे धीरे सीखना है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड, अकेला क्लोरीन है IDE, तो इसको हम बोलेंगे क्लोराइड। क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, इसको हम बोलेंगे एसीटेट, दिस इज एसीटेट। इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट, और इसको हम बोलेंगे फॉस्फेट। वेरी गुड, ठीक है। ये कुछ एसिड्स हमने देख लिए, ज्यादा नहीं, आधा घंटे में आज बैलेंसिंग भी सीखना है। फॉस्फेट, और इसका चार्ट है पूरा, आपको एक चार्ट दिया गया है। एंड मेनी ऑफ यू आर नॉट चेकिंग स्काइप, टुडे आई हैव रिटन ऑन पेरेंट फोरम। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, कुछ तो सोचते हैं अरे रहने दो, मजा करेंगे। आप स्काइप के साथ मजा करेंगे, स्काइप आपके साथ मजा करेगा। प्लीज देखिए, ठीक है। I don't know how many of you know, I've even shared the notes of previous chapters also. Light and probability. Okay. Now light and probability, now I'm saying light के customized notes भी भेजे गए हैं आपको, right? ठीक है. Let's look at some bases, some common bases, जो हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे उनको, कुछ bases देखते हैं. Now you need to know 1 to 20 atomic numbers के आपके एलिमेंट्स जानने चाहिए, 9 से लेके कितने तक, 10 ग्रेड तक। तो ग्रुप 1 में ग्रुप 1 जो पीरियोडिक टेबल का होता है, इसको ऐसे याद रखिए, है ली ना की रब से फरियाद। सीखो, ऐसे सीखना है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप या है लीना की रब से फरियाद। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, चारों आपको जानना चाहिए। दे आर इन ग्रुप 1, सो देयर वैलेंसी विल ऑलवेज बी 1। इनका एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, दिस विल बी 2 1 2 8 1 2 8 8 1, और उस एक इलेक्ट्रॉन को वो मरवा देगा, यानी कि इसके सर पे क्या कलंक आएगा? सब में एक ही प्लस आएगा। तो अगर ये क्लोरीन के साथ फॉर्म करेगा HCl, LiCl, NaCl, KCl, समझ में आया? ग्रुप 2 क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, आपको इतना तक जानना चाहिए। बेरिलियम, मैंगनीज, कैल्शियम, ये सब क्या करेंगे? 2+ पे आएंगे। अब मजेदार चीज देखो, अगर हम मैंगनीज की शादी ऑक्सीजन से कराएं, ऑक्सीजन हैज 6 electrons in his outermost orbit, so oxygen will always try to hati out 2 electrons, so oxygen perennially has what? 2-, और मैग्नीशियम पेरिनियली कैसा रहता है? 2+। इनकी शादी में कोई दहेज वहेज नहीं, एकदम बढ़िया शादी होगा। लेकिन वहीं अगर ऑक्सीजन के साथ सोडियम का शादी करा दे तो ये 2- है, दिस ससुरा इज ओनली प्लस, ये बोलेगा एक और सोडियम लेके आइए, ये बनेगा Na2। मजा आ रहा है? वहीं अगर आप मैग्नीशियम की शादी क्लोरीन से कराएं तो ये 2+ है माइनस, बोलेगा इसका एक कजिन भी है, उसको भी ले आइए, अब ये बनेगा MgCl2। तो क्लोरीन के साथ BeCl2, MgCl2, CaCl2। समझ में आया? एक मिनट, वाटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, H2O स्प्लिट अप होता है तो कैसा? H+ OH-। ठीक है, H+ is a characteristic in acid which you have seen, हर एसिड में H+ रहता है, हर बेस में OH- रहेगा, OH-, this is called hydroxide ion। अब देखो Mg का अगर हम बेस देखें, सपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोई आपको बोलता है इसका फॉर्मूला बताइए, आपके पास डाउट होना शुरू हो जाता है, MgOH है या MgOH2 है? कोई टेंशन नहीं है, Mg तो 2+ है,
OH तो माइनस है तो 2 आएगा MgOH2। तो फिर बेरिलियम का भी कैसा होगा BeOH2, कैल्शियम का भी कैसा होगा CaOH2। वहीं अगर सोडियम के साथ करो बिना दहेज का शादी NaOH, बिकॉज सोडियम इज Na+, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड इज माइनस, जबरदस्त शादी NaOH, LiOH, KOH। दैट्स व्हाई NaOH is known as the king of base, बेसों का राजा होता है वो। These things slowly as we start learning this chapter, think आपके लिए पॉसिबल नहीं है सारे इक्वेशंस याद करना। These come, some charts I have shared, please go through those charts, and there is, if anybody has a, see if you type, I can give you the name, very good revision हो जाएगा आपका। Type it like this, Selena ICSC, खरीदने की जरूरत नहीं है, grade 9 केमिस्ट्री, ठीक है, ग्रेड 9 केमिस्ट्री PDF करके आप टाइप मारिए तो आपको एक साइट खुलेगा जन जागरोश करके। क्या खुलेगा? जन जागरोश। देयर इट विल बी लाइक डाउनलोड डाउनलोड, 3-4 बार ढूंढने के बाद एक में खुल जाएगा, जिसमें सिर्फ पहला चैप्टर, a brief idea about concise chemistry. If you read that chapter, more than good. It will just brush you what is valency, what is oxidation number, what is a diatomic element, what is a triatomic, monoatomic, थोड़ा बेसिक्स आपको क्लियर कर देगा। ये आप देख सकते हो। if you create an ID, then you can download the PDF, otherwise स्क्रीन में PDF खुलते रहता है, आप देख सकते हैं। सेलिना's ICSC ग्रेड 9 केमिस्ट्री PDF टाइप करने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। So these were the things that I actually posted. Rishabh, if this is, and Ashka, if this is not clear to you, you can see Skype. मैं आपको बोलूंगा क्या क्या चीज आपको जानना चाहिए। अमोनियम, ammonium is the only non-metallic cation. Cations are always metallic. Na+, Mg, Na+ मतलब परिवार से ले लिया, फर्स्ट ग्रुप, Mg2+, सेकेंड ग्रुप, then let's go to group 13, बोरॉन 3+, Al3+, ये हमेशा मेटालिक होते हैं, लेकिन ये अकेला नॉन मेटालिक कैटायन है और कोई नहीं है। अमोनिया गैसेस NH3, वो जब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले लेता है तो अमोनियम आयन बनता है। That's why we have got a product called ammonium chloride. अब आप खुद सोचो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, NH4+ Cl-, जबरदस्त शादी, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। याद करने की जरूरत, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। गोल्ड, ये आपको ये हाइड्रोजन जानना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अच्छा कॉपर, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स है। ग्रुप डी मतलब यहां बीच में आएगा। ट्रांजिशन मेटल्स विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 11 में आप पढ़ेंगे। देखिए कॉपर का एक Cu+ भी है, Q+ भी है। याद रखिए आज से, बड़ा वाला हमेशा होता है इक, छोटा वाला होता है अस। Q+, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, ठीक है, प्लम्बस, प्लम्बिक, ऐसे। लेकिन फेरस, फेरिक और क्यूप्रिक में फर्क है। फेरस में +2 is the smaller, +3 is the bigger. Here +1, +2. So if you want to make, say, copper oxide, if I have something, 1 minute, children, sorry. So if I have, say if you have CuO, जो कि आप कॉमन देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, तो आपको ये CuO लिखने के बाद आपको इसका केमिकल नेम लिखना पड़ेगा। आप फंस गए, क्या होगा ये, तो आप हिसाब कीजिए, ये 2- है तो ये 2+ होगा, तो ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, या फिर हम इसे लिखेंगे कॉपर रोमन में 2 और फिर लिखेंगे ऑक्साइड। और अगर आपका कंपाउंड Cu2O है, अब जरा हिसाब कीजिए, ये -2 है तो ये +2 होना ही पड़ेगा। 2 एटम्स +2 कर रहा है तो हर एटम +1 होना ही पड़ेगा। सो दिस इज क्यूप्रस कॉपर 1 ऑक्साइड। क्लास 10 में ये भी आएगा, ये भी आएगा आपको, पर आपके CBSE के बच्चे इनको जस्ट याद करते हैं कॉपर 1 कॉपर 2, तो कॉपर 1 कॉपर 2 क्यों हुआ वो समझिए। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एनीवन हु हैज डाउट? Cu2O, overall the charge is neutral. See, if you are not understanding, don't sit quietly, stop me then and there. बोलिए। Like when you form business, how do you know which copper to use? No, not which copper to use. That is not the question now. My question is, I have said that there are two compounds, Cu2O and CuO. Both are oxides of copper. Give me the names of both. Yes, sir.
Will you be able to identify their names? My first question. If not, then I'll explain again. जैसे ये दोनों आ गया, आप इनके नाम कैसे, दोनों ही तो कॉपर के ऑक्साइड हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर का. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? अभी रखो, सीखेंगे, सब एक साथ नहीं सीख सकते. सो आप क्या करो, जो भी आपका मॉलिक्यूल है, वंस यू हैव फॉर्म्ड अ मॉलिक्यूल CuO, इट इज न्यूट्रल. द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, चार्ज इज न्यूट्रल. लेकिन इसमें एक का चार्ज हमें पता होना पड़ेगा. ऑक्सीजन हमें हमेशा पता है 2-, इसका मतलब कॉपर मस्ट बी 2+, और 2+ मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यूप्रिक. तो आप इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड लिख सकते हैं या फिर कॉपर ब्रैकेट 2 ऑक्साइड. और यहां पे भी 0 है, ऑक्सीजन इज -2. दैट मींस दिस साइड शुड बी +2 and +2 is contributed by 2 copper, so each copper should be +1. so this is cuprous oxide. तो ये आपको जानना चाहिए. मैं जानने वाले मार्क कर देता हूं, आपको ये भी जाएगा पीडीएफ में, डोंट वरी. बेरियम जानना चाहिए, कैल्शियम, क्यूप्रिक, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, Mn2+, ये Mn के बहुत सारे होते हैं. फॉर सीबीएसई आई एम सेइंग. जिंक आपको जानना चाहिए, देन अल्यूमिनियम जानना चाहिए, ओके, और ये जानना, बाकी नहीं. This also has 1+. लेड इज ट्रांजिशन, एक नहीं रहेगा, 2 रहेगी हमेशा, +2+, प्लम्बस, प्लम्बिक ऐसे, ठीक है. PB4 भी आता है, राइट. सो दीज यू शुड नो. सेकेंड, लेट अस सी सम एनायंस, एसिड एनायंस. एसीटेट आपको जानना चाहिए, बाइकार्बोनेट जानना चाहिए. दिस विल ऑल विल कम इन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. देन ब्रोमाइड जानना चाहिए, क्लोराइड जानना चाहिए, परमैंगनेट जानना चाहिए, hydroxide. I'm saying from this hydrate, आपको इतना नहीं, NO3, NO2, that's it. You should know this, you should know this, you should know this, you should know this. ये देखो, ये कितना बढ़िया है. अकेला होने से सल्फाइड, छोटा है तो 8, बड़ा है तो 8. SO4, SO3, you should know this. कैल्शियम जिंकेट, ये भी आएगा आगे चैप्टर्स में. स्टैनेट, क्रोमेट, इतना आपको नहीं चाहिए, इतना मर जाओगे इतना करोगे तो. नाइट्रेट, फॉस्फेट जानना चाहिए, बस दैट्स इट. इतना जानोगे तो भी काफी है. इनको लेकिन गेट इट बाय हार्ट, देन ओनली योर ग्रास्प अबाउट द सब्जेक्ट विल बी क्लियर. Memorize means next time when you write carbonate, it's like this. If I tell you go to L tower, you at least know na L tower is that side. Yes or no? That acumen should develop. कार्बोनेट बोलने से SO3 मत लिख डालो, मतलब इतने भी बेहुदे मत बनो. कार्बोनेट बोलने से CO2 भी नहीं लिख सकते, CO3 2-. That is the acumen I am asking you to build up, and if you start practicing, it will come quickly. आपको easy होगा. बोलो बेटा, कौन सा? टेट्रावैलेंट मतलब 4 है वैलेंसी जिसके. कार्बन, चेयर्स, ठीक है. आगे, नाउ देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच यू शुड नो. यही मैं आपको बता रहा था, इन कंपाउंड्स में क्या क्या आपको जानना चाहिए. देखो, पोटेशियम मतलब इट कम्स विद इन 1 to 20, ये आपको जानना चाहिए. पोटेशियम का किसी के साथ भी शादी है तो जान लो, ये नहीं चाहिए इतना. कार्बोनेट, okay, potassium hydrogen carbonate, this is like not required that much. potassium hydrogen sulfur, potassium sulfur, इतना जानो. potassium dichromate, ये organic chemistry में जरूरत होगा. CO3 नहीं चाहिए. okay, potassium plumbite. sodium chloride you should know, sodium hydroxide, sodium nitrate you should know, sodium hydrogen carbonate, baking soda, NaHCO3, ठीक है. Then this is from that book only. This is from ICSE's book. This is what they are learning from 7, and you people have never seen it. This is that's why CBSE guy limps a lot in grade 11, and that too after COVID. Many of your chapters have been taken. Like you don't know anything about mole. They know mole from grade 9, and your first chapter in grade 11 is some basic concepts of chemistry. उसी में fail करते हैं सब, basic में ही. First test में सब fail हो जाता है. तो वो ना हो तो सोडियम सल्फेट यू शुड नो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जिंकेट, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इतना जानना चाहिए आपको. हाँ, अगर कोई पूछे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NH4OH,
तब आप, it should come to you. I know it will be difficult for you. I have full sympathy for you, but someday we have to grind it. एक बार तो पीसना पड़ेगा. जो मैंने अभी आपके लिए घर पे क्या होना चाहिए बोलो तो, जो मैंने टिक किया ना, इनका आप सुंदर से एक नोट्स बनाइए. नाउ यू विल लाफ एट मी. और चार्ट कहाँ लगना चाहिए? हाँ, स्टडी टेबल, ये बोला. वॉशरूम सबसे पहले, जहां आप ब्रश करते हैं आपके सामने वाले वॉश बेसिन पे, जहां टॉयलेट सीट पे आप बैठते हैं उसके बाजू वाले वॉल में. वाई? क्योंकि वहां आपका मन एकाग्र है. आप रोज देखते रहोगे ना, देन इफ यू स्टार्ट चलेंगे, नहीं NH4OH नहीं होता, NH4OH. तू जानता है क्या? रोज ब्रश करता हूं, देखता हूं NH4OH, तो मेरे को सिखा रहा है. दैट विल बी योर मेमोरी. As I tell everyone, you guys are least bothered what is the make of that fan which is running. But if I take away that fan one day after you've come for 6 months, you will first come and say, sir, fan हटा दिया क्या? फैन से आपका कोई रिश्ता नहीं, वो आपके मेमोरी में बैठ चुका है कि सर के घर में वहां एक फैन है. Please start doing that. There's nothing to laugh because your mind is one track at that time. बैठा है ना, 10 minutes you are spending in the washroom. 10 minutes लगा के रखिए. देखते देखते आपके, और ज्यादा रील देखने का ख्वाब छोड़ दो, वो ज्यादा बाद में देखना. आप देखोगे आपको अपने आप याद आएगा. अदरवाइज यू आर पुटिंग इट ऑन वॉल एंड ऑल दैट जस्ट टू डैमेज योर वॉल. पुट इट इन सच अ वे दैट यू सी इट एवरी डे. ठीक है, डन. एंड देन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जान सकते हो, कोई बात नहीं. कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, टिक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड. ये आपको सेव होके जाएगा, सो आप डू नॉट वरी. जिंक सल्फेट, हाँ, MgCl2, जिंक ऑक्साइड, इतना आपको तो जानना ही चाहिए. एल्यूमिनियम, सी ट्राई टू ट्रैक इट लाइक दिस. एनीथिंग फ्रॉम 1 to 20 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को जान के रखिए. एटलीस्ट जो मैंने लिखाए थे, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, यू शुड नो. ठीक है, चले. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर टुडे विल स्पेंड सम टाइम ऑन समथिंग कॉल्ड बैलेंसिंग, क्योंकि इसको ना बाद में इतना डेप्थ में आपको पढ़ाने का वक्त नहीं मिलेगा. बैलेंसिंग, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव some basic idea of balancing chemical equation. First of all, why do we balance a chemical equation? Okay, this will be a part of our chapter, but I'm teaching it ahead so that we can do some exercise together. Say C plus O2 gives me CO2. This equation is balanced. Equation balance होना इसलिए जरूरी है because you have learned that law of conservation of mass, Antonine Lavoie circle law. And that law is valid only for chemical reactions, not nuclear reactions. The total on the left hand side should always be the total on the right hand side. अगर हम कार्बन को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 कार्बन. राइट हैंड साइड ऑल्सो 1 कार्बन. 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन. ठीक है ना. लेकिन अगर हम ऐसे एक इक्वेशन देखें, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. अच्छा, कार्बन को हमने C लिया बिकॉज कार्बन इज अ मेटालॉइड. ठीक है, हाइड्रोजन एग्जिस्टेंस इज नॉट एज H2. हाइड्रोजन H करके नहीं, हाँ, नहीं, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन आपने कभी देखा ही नहीं है. हाइड्रोजन व्हाट यू सी इज H2. स्टेबल फॉर्म इज H2. H2 plus O2 gives me H2O. But right now this is not balanced. Okay, so if you see 2 oxygen, we have got 1 oxygen out here, so we put a 2 out here. We balance an equation for the reason that the left hand side should be equal to right hand side. If you see, there are 4 hydrogen, so make it 2 more, 4 hydrogen, 2 oxygen, 2 oxygen. अच्छा, how many of you know to read this? ये चलो तो ये पढ़ो, ये क्या है? What is this? Sorry, no, what is this? 0. 1 molecule of carbon dioxide. You're in grade 10 now. You're not a grade 6 guy. 1 molecule of carbon dioxide contains oxygen. 2 atoms of oxygen. What is this? 5 molecules of carbon dioxide. 5 molecules of carbon dioxide. Very good. What is this? 1 molecule of aluminum sulfate contains 2 atoms of aluminum, 3 atoms of sulfur, 3 atoms of sulfur, and 12 atoms of oxygen.
2 molecules of aluminum sulfate contains 4 atoms of aluminum. ये जो 2 है ना, ये पैतृक संपत्ति है, सारे को सब बच्चों को मिलेगा ये. It contains 4 and then it contains how much? 6 atoms of sulfur and 24 atoms. Okay, ये क्या है? This also you will get a lot. नहीं, alum है. Do you know what is this thing called? नहीं, इसको क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं हम. ये लिख के रखिए, जैसे वॉशिंग सोडा Na2CO3 dot 10H2O. 10H2O means each molecule of Na2CO3 will be surrounded by 10 molecules of water. जब शरीर में वाटर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड. तो अगर हमारा ऐसे मैं लिखूं Na2CO3, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन हाइड्रेटेड. एनहाइड्रस. गेट टू नो, ये सब बाद में नहीं पढ़ा पाएंगे. एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. व्हाट इज दिस? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. हाउ टू रीड इट? 1 molecule of sodium carbonate hydrated contains 2 atoms of sodium, 1 atom of carbon, 13 atoms of oxygen, 3 इधर उधर 10 है, and 20 atoms of hydrogen. Another way you can say that 1 molecule of sodium carbonate is surrounded or attached with 10 atoms of water. Copper sulfate CuSO4.7H2O 5H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. ये भी आएगा हमें आगे, ठीक है. So our job is to balance equation. Maybe in schools that you are learning now, and there's a technique called hit and trial. जैसे हम अभी यहाँ कर रहे थे ना, इसको हम hit and trial टेक्निक बोलते हैं. अगर आप मुझे बोलो सर ये कैसे होता है, बता पाएंगे? कुछ नहीं बता सकते हैं. What I'm going to teach you now is a technique which is not there in your book. ABCD टेक्निक सीखेंगे. जिन्होंने जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं दोबारा सीखेंगे. अगर आपका हिट एंड ट्रायल से हो गया, in boards and all nobody gives you a question to balance, it comes in ICSE, but we will enjoy this class. अगर आपको बैलेंस करने बोला, हिट एंड ट्रायल पहले ट्राई कीजिए. हो गया तो हो गया, नहीं हुआ then that form technique which I will teach you now, उसमें हर कोई इक्वेशन होगा. लेकिन एक बात बोल देता हूं, if you are trying to balance an equation of this simple order with my technique, then it is laborious. But there are some equations which I have brought. सारा दिन बैठ के hit and trial करोगे तो भी नहीं होगा. In that, the technique which I am going to teach you will be very very helpful. सीखे चले एक एक करके. So we brought some sample equations. जैसे इस equation को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. नहीं, एक काम करते हैं, इससे पहले एक और इक्वेशन ले लेते हैं. Let's take a hydrocarbon equation. Let's take heptane. Okay, इसको लिखते हैं heptane C7. ये सब आपका हो जाएगा धीरे धीरे, don't worry. 7 to the 14 plus 2 16. Any hydrocarbon burns in oxygen to give you carbon dioxide plus water vapor plus energy. ये fuel consumption combustion का equation है जो आप grade 8 से पढ़ रहे हैं. Any fuel, this is a hydrocarbon burns in oxygen to give you this. Now this is not balanced. Step by step we will do. All of you use your pens and we will start doing it. Ready? इसको बैलेंस करेंगे. ऐसे इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल में बैलेंस करते करते शाम हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे आप. आइए स्टेप नंबर 1. सबसे पहले A, B, C और D लगा दीजिए. इसको कहते हैं अबसाडा स्टेप. पहला स्टेप क्या है? A, B, C, D. सर एक टू और होता तो ये लिखते, और क्या. इतना क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर? फर्स्ट स्टेप इज A, B, C, D. आंख बंद करके, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, आइए लिस्ट डाउन करेंगे पार्टिसिपेंट एटम्स को. सबसे पहले कौन है? कार्बन, ठीक है. और कौन है? हाइड्रोजन. और कौन है? ऑक्सीजन. सर आप उस तरफ क्यों नहीं देख रहे? अरे जो यहां है उसी से तो ये बना है, उधर देखने की जरूरत ही नहीं है. इधर देख लिया तो उधर देखने की जरूरत नहीं है, इसी से ही तो वो बना है ना. बट मेक श्योर यहां पे कोई छूट ना जाए. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट. हाउ मेनी कार्बन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड?
7a. If my equation is balanced, then 7a should be equal to c. Do you agree or not? ये और ये कार्बन बराबर होना चाहिए. ये इक्वेशंस का खेल है और कुछ नहीं. इक्वेशन में मैथमेटिकल 7a should be equal to c. यहां गलती कर दिया पूरा गलती हो जाएगा. चेक कर लो और कोई कार्बन तो नहीं है. नहीं है. ठीक है. हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. इधर कितने हाइड्रोजन है? 16a. उधर कितने हैं? 2d. 16a is equal to 2d. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. समझ में आ रहा है कि नहीं? एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग टेल मी अगेन. वेदांत, देयर सम डाउट इन योर हेड. बोलो बोलो बोलो. लोग छुपाओ मत. छुपाने से कुछ शर्मिंदगी नहीं है. समझ में आया क्या? व्हाट डिड आई डू? A means A molecules of C7H16. आपने एक वेरिएबल लगा दिया. कोफिशिएंट लगाया है. बैलेंसिंग का मतलब क्या है? इस साइड के एटम्स शुड इक्वल टू इस साइड के एटम्स. तो मैं तो वही क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं ना. 2d क्योंकि हाइड्रोजन B molecules of वाटर. एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है? D मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2d. यहां पे अगर मैं 3 लिखता तो कितने हाइड्रोजन होते? 6. 6 कैसे आता? 2 into 3 किया ना, तो 2 into d करेंगे. हाँ बोलिए. हाँ ABCD लिखना ही है आपको, नहीं तो मैच नहीं करेगा. और आपका काम क्या है? इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करके ABCD का वैल्यूज निकालना है और वो सब डाल देना है. फिर इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया आपका. चेक करते हैं ना पूरा पिक्चर. देखिए अब आते हैं ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2b. इस साइड में कितने हैं? 2c यहां से आया और यहां पे कितना है? d. 2c plus d. ये स्टेप अगर आपने गड़बड़ किया आपका सब गड़बड़ हो जाएगा. बी वेरी केयरफुल आउट हियर. ठीक है. क्लियर. आइए तीसरा स्टेप. वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. जो वेरिएबल ज्यादा अपीयर कर रहा है, A 2 जगह में अपीयर कर रहा है, C भी 2 जगह में अपीयर कर रहा है. जो ज्यादा अपीयर कर रहा है उसको आप 1 मान लीजिए. आपकी मर्जी. द वेरिएबल विच इज अपीयरिंग मोर जस्ट टेक इट एज 1. तो हम यहां पे ले लेते हैं. चलो लेट A इक्वल टू 1. A को हमने 1 डाला. हमारे पास 3 ही, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं देखो तो बेटा. A B C D है ना. 4 वेरिएबल्स हमें. हमने A को 1 ले लिया तो C कितना हो गया? 7 हो गया. ठीक है. समझ में आ गया. 16 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 2D. तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. 8 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू D लिख सकते हैं. तो D की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 8. अब B सॉल्व करना है. B यहां से सॉल्व कर लेते हैं. 2B इज इक्वल टू 2C. 2C बोले तो 14 और D बोले तो कितना? 8. ठीक है ना. तो B की वैल्यू कितनी हुई? 7 + 4 यानी कौन सा चीज? वही 8A. D is equal to 8A. A is equal to 1 ना. No, hang on. Did you understand this? 16A is equal to 2D, which means 8A is equal to D. I have assumed A equal to 1. So my D becomes equals to 8. ठीक है ना. Clear? Never hesitate. Very good, Tejita. Now see here, 2B is equal to 2C plus D. So 2B is equal to 2C means 14. Each C is 7 and D is 8. तो 14 plus 8 कितना हो गया? इसको अभी 2 से डिवाइड कर दो. B is equal to 7 plus 4 11 हो गया. तो यहाँ पे हम B की वैल्यू कितना लाए? 11. तो आइए भाई साहब कलर चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं A का वैल्यू है 1. तो 1 ही रख देते हैं. मतलब कुछ लिखने की, यहाँ कुछ लिखने की तो जरूरत ही नहीं है. इन सबको मिटा देते हैं. ठीक है ना. ज्यादा मीडिया. कहानी में ट्विस्ट. क्या क्या था? C7 plus O2 gives me CO2 plus H2O. आइए अब हम हमारे कोफिशिएंट्स को भरते हैं. A is 1 तो छोड़ दो. B की वैल्यू कितनी है? 11. C की वैल्यू कितनी है? 7. D की वैल्यू कितनी है? 8. अब एक एक को टैली करें. जरा चेक करो. कार्बन कार्बन लेफ्ट साइड में 7, राइट साइड में 7 बैलेंस्ड. हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 16, राइट साइड में 16 बैलेंस्ड. ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 22, राइट साइड में 14 + 8
22। दुनिया का कोई रिएक्शन नहीं है जो एक प्रोसेस में बैलेंस नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल इसमें करते रहोगे ना, रिमेंबरिंग द ग्रैंडमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं नानिया, सीखा आपने, एक और करें अभी, ठीक है? ये सब तो सेव हो रहा है, डोंट वरी। चलो टाइम नहीं रहेगा, एक इसको करते हैं। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। 4 इक्वेशन है ना, मैंने एक को 1 में ज्यूम कर लिया, आप 5 में ज्यूम कर लो। 1 में कैलकुलेशन आसान होता है, 0 मत करना। आपको इच्छा है ना, आप एक को 33 एज्यूम कर लो, आपको कैलकुलेशन करने का शौक है तो कर सकते हैं। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, फिर कटेगा ना। एक को अगर आपने 1 की जगह 2 एज्यूम करते तो कैसा आएगा पता है? एक को 1 की जगह 2 एज्यूम करते तो क्या होता? यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 22 आता, यहाँ पे 14 आता, यहाँ पे 16 आता। फिर हम कहते हैं बुड़बक हो आप, 2 से डिवाइड करके लोएस्ट टर्म्स में डालना पड़ता है ना। ठीक है, चलिए इस वाले को करने की कोशिश करते हैं। लेट्स अगेन गो बाय ABCD। यस सर। अच्छा, इन द नेक्स्ट वन हर कोई सेपरेट है बेटा, हर कोई सेपरेट। आइए, ओ आप नेक्स्ट पे चले गए कोई बात नहीं, चलो आओ करते हैं एक साथ। तो हमारे लिए क्या होगा? अवसर प्रोसेस, अ ब स ड अ। ये ऐसा टेक्निक है, दे नो इट। There's a girl whom I teach in US. वो जब 11 में वहां पे पढ़ रही है ना, तो their teacher was giving and she did it. The teacher was amused. Then the teacher said, "Can they solve everything?" और 3, 4, 5, 6. We got a nice thing out here. Even that teacher was amused in AP chemistry. And they really started doing it in this format. ये मजेदार है, लेकिन टफ इक्वेशंस के लिए अच्छा रहता है। ABCD हो गया, चलें आगे। आइए पहले एटम्स को लिस्ट करते हैं। कॉपर, बोलिए इस साइड कितना है? A शुड बी इक्वल टू, और कितना कॉपर है? एक ही कॉपर है। A शुड बी इक्वल टू C। कॉपर का तो हो गया भाई साहब। हाइड्रोजन कितना है? 2B शुड बी इक्वल टू 2E। और क्या है? सल्फर। अच्छा आशका देखो बेटो, सल्फर यहां पे आ गया। सल्फर इधर कितना है? B। इस साइड में B सल्फर्स है, उस साइड में कितने हैं? C प्लस D। देखो तो आशका समझ में आया कि नहीं आपको? Okay, I think you're studying opposite to the light in your room. आंखों का केयर लीजिएगा। Okay, next सल्फर भी हो गया, और कौन बचा? ऑक्सीजन। आइए ऑक्सीजन को देखते हैं। 4B, वाओ 4B। ये मिकी माउस क्लब हाउस जैसा है। हमने किया। ओ नहीं, वो था डोरा द एक्सप्लोरर। यस, तो 4B का कितना हो गया? 4C प्लस 2D E। नशा हो जाएगा, इसको एक बार करोगे मजा आएगा ना। हो गया, आ जाओ देख लो। ए भाई साहब एक जगह पे है और नहीं है, बी यहाँ 3 जगह पे, बी को 1 ले ले भाई साहब। चलो ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, ई भी निकालना है। बहुत निकालना है भाई साहब इस बार। क्या? बी को 1 एज्यूम करते हैं, 1। सो बी शुड बी इक्वल टू ई। ये देखो बी शुड बी इक्वल टू ई, तो ई की वैल्यू कितनी हुई? 1। अच्छा ई हो गया। अच्छा उसके बाद ये यहां पर डबल इक्वेशन होगा, आ जाओ। 4 ई है, 4 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 4C। C एंड A एंड C आर सेम, तो ठीक है। 4C की जगह हमने 4C रखा, देन 2D की जगह हमने 2D रखा, और E की जगह हमने कितना रखा? 1 रखा, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 3 इज इक्वल टू 4C प्लस 2D। अग्रीड? और यहां पे क्या होगा? 1 इज इक्वल टू C प्लस D। यानी कि भाई साहब D की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस C। हाँ, Then oxygen 4B equals 4C plus 4D। बीच में मत रोको, तभी रोको। कौन सा है बोलो, सब टॉस हो जाता है। ऑक्सीजन क्या है? माय बात मत बोलो, मैं गाड़ी में उतरा खिड़की से बाहर फेंक दूंगा मैं। हाँ, D इज इक्वल टू 1 माइनस C हो गया। D 1 माइनस C, इसको यहाँ पे इनपुट करो। 3 इज इक्वल टू, देखो मैं ना यहाँ से देख रहा हूँ ना, मेरा सर दर्द अलग होता है, आपको तो वहां दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मजा आ रहा है। 3 इज इक्वल टू 4C प्लस 2 इंटू 1 माइनस C। कितनों को ये स्टेप समझ में आया? हमने D की वैल्यू यहाँ पे पुट की, अब सारे C में आ गया, गेम कंट्रोल में है। आइए 3 इज इक्वल टू 4C प्लस 2 माइनस 2C, और 3 और 2 हो जाएगा 1।
और 4C2 और कितना हो जाएगा 2C। C की वैल्यू कितनी आई हाफ। ये तो मजेदार होगा, C की वैल्यू है हाफ, तो A की वैल्यू भी हो गई हाफ। ठीक है ना भाई साहब, सारे निकल गए, D निकालना बाकी है। D इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। वेरी गुड, D इज ऑल्सो हाफ। बड़े तार, अरे छा गया यार तू। सब मिटा दें अभी। How do you get half a molecule? That's the question, Ashka madam. We need to adjust that. That's the $1 million सवाल which we'll solve. So A is कितना हाफ। आशका बोल रही है हाफ मॉलिक्यूल कैसे होता है सर, आप थोड़ी तोड़ के लाए हो, तो अब देखेंगे उसको क्या करेंगे। बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू 1। हाफ मॉलिक्यूल तो होता नहीं है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से पहला वाला हो जाएगा 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अरे यार आओ ना, हाँ ये हो गया 2, और फिर ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब अगर तुम्हारा हिसाब ठीक है, सब ठीक होना चाहिए। आज कॉपर को बैलेंस करते हैं। कॉपर एक कॉपर इक्वल टू एक कॉपर बैलेंस्ड। हाइड्रोजन बैलेंस करता है, इस साइड में है 4, उस साइड में है 4। सल्फर बैलेंस करता है, इस साइड में है 2, उस साइड में 1 + 1 2। ऑक्सीजन इस साइड में है 8, उस साइड में है 4 दूनी 6 2 8। ससुरा ये हो गया, मजा आया। एक करेंगे आप लोग, थोड़ा हम भी रेस्ट लेते हैं। हाँ इसमें ज्यादा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम क्लोराइड, इसमें मजा आएगा आपको। हाँ ये कर लेते हैं, इसको करके छोड़ देते हैं। चलो आ जाओ, नहीं तो वी शुड ऑलवेज एंड विद अ हैप्पी नोट। A, B, C, that one equation is wrong. I'll give you the right equation. 100% that is wrong. E, F. Okay, let's do it. चलो सब लोग मिलके करते हैं तो फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले कौन है, पोटेशियम। How many potassiums on this side? 2A. How many potassium on this side? C. Okay, इसके बाद कौन है, क्रोमियम। यहाँ पे कर लो एक साथ तो आपको फास्ट भी हो जाएगा। क्रोमियम कितने हैं 2A। एनीवे आई विल मेक दिस PDF। 2A इज इक्वल टू D। चेक करते जाना। हाँ ऑक्सीजन हाउ मेनी 7A। E इज इक्वल टू E। उसके बाद हाइड्रोजन B इज इक्वल टू 2E। और कुछ है नहीं, और क्लोरीन इज हाउ मच B, C, 3D प्लस 2F। ठीक है, तो A 3 जगह पे है, A को 1 ले सकते हैं यहाँ पे आराम से। एक्चुअली A से ही हो जाता है हमेशा, कभी फेल नहीं होता है ये। A इज इक्वल टू 1, देन C इज इक्वल टू 2A मीन्स 2। 2A इज इक्वल टू, हाँ 2A इज इक्वल टू D। So D is also equal to 2. 7 times of A is equal to E. E कितना हो गया 7. Then B is equal to 2E. B is 14 और F निकालना है। 14 is equal to 2 plus 3 into 2 is 6 plus 2F. So 6 plus 2 8, 14 और 8 में गया तो 6 is equal to 2F। F की वैल्यू आई 3। ठीक है ना, आप भरते जाते हैं। चलिए एक बार हाथ आ गया फिर फास्ट हो जाता है। क्या हो गया हमारा, पोटेशियम A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू 14, C की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2, E की वैल्यू, F की वैल्यू 3। अब जरा मैच कीजिए, 2 पोटेशियम 2 इज इक्वल टू 2। क्रोमियम मैच करो, इधर 2 उधर भी 2। ऑक्सीजन इधर है 7 उधर कितना है 7, मैच। हाइड्रोजन मैच करो, इधर है 14 उधर कितना है 14। और फिर क्लोरीन मैच करो, इधर है 14 उधर है 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 6 6 12 प्लस 2 14। कैसे मैच नहीं होगा, 100% होगा।
रामबाण चीज है ये, कभी फेल ही नहीं हो सकती।